There are basically two types of the financial market. The first one is a money market and second is a capital market. Money market is a market for short-term funds which deal in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. It is a market where low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and actively traded every day over the telephone and through the internet. And you know very well the major participant in the money market, that is the Reserve Bank of India, commercial banks, non-banking financial company, state government, large corporate houses and mutual funds. There are various kinds of instruments used in the money market. So if the major participants of the money market, RBI, commercial banks, NBFC, SG and mutual fund wants to procure the fund from the money market for short term period, so they will issue different kinds of instrument which are as follows. The first money market instruments is treasury bill. Treasury bill is a short term borrowing instrument which are issued by the government of India, and thereafter RBI issues it on the behalf of government India. So generally ट्रेजरी बिल जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, लेकिन बेसिकली इसे आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द मेन फीचर ऑफ द ट्रेजरी बिल, द फर्स्ट वन इज इट इज़ अ जीरो कूपन बॉन्ड्स. इट इज़ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, एंड you know very well कि treasury bill is a zero coupon bonds. And why it is called a zero coupon bond? Because it is issued at discount and repaid at par. For example, a treasury bill of face value of rupees 1 lakh will be sold at rupees 96,000, and the time of maturity the investor will get 1 lakh. Thus the 4,000 is the interest received by him. So इसमें कोई इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइड नहीं होता है. बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट होता है द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द मैच्योरिटी प्राइस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट, यानी ट्रेजरी बिल एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है. एज वेल इट इज़ वेरी हाईली लिक्विड एंड हैव अ निजिलेबल रिस्क, यानी ये बहुत ही लिक्विड होता है क्योंकि 1 साल के अंदर इसका रिडम्पशन पीरियड होता है. एज वेल एज इसमें रिस्क काफ़ी कम होता है. It is available in denomination of 25,000 and its multiples. If any investor wants to invest in treasury bill, so he will invest the amounts in the denomination of rupees 25,000. So it is the first instrument of the money market. Now we will discuss the second instrument of money market, that is a commercial paper. What is commercial paper? The commercial paper is issued by large credit-worthy companies to raise short-term fund at lower rates of interest than the market rate. यानी कॉमर्शियल पेपर इशू किया जाता है कंपनी के थ्रू, और ये कंपनीज कैसी होती हैं जिनकी क्रेडिट काफ़ी अच्छी होती है मार्केट में, यानी जिनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनकी क्रेडिट एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है. और ये कॉमर्शियल पेपर इशू होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, यानी मार्केट में इसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्रेडिट के बल पे मार्केट में इशू करती हैं पैसा जुटाने के लिए, और ये पैसे जो होते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो अरेंज करती है, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टर्स को वो जनरली मार्केट रेट से कम होता है. सो बेसिकली कुछ चीज़ें एकदम क्लियर है. कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कॉमर्शियल पेपर इशूड बाय द लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज. एंड किस फंड के लिए इशू होता है? फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स. एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कॉमर्शियल पेपर इज़ वेरी लो as compared to the market rate. And the first feature of the commercial papers, the first one is it is an unsecured promissory note, यानी कि इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है. It is a unsecured promissory note having a maturity of 15 days to 1 year. इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए होती है. यानी कोई भी एक बड़ी कंपनीज कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है 15 दिन, कम से कम के लिए 15 दिन के लिए उसे इशू करना पड़ सकता है कॉमर्शियल पेपर. The second one is it is a negotiable instrument transferable by endorsement and delivery. कॉमर्शियल पेपर में एक ख़ास बात होती है कि इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अगर एक बंदा इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये पेपर्स को, इस कॉमर्शियल पेपर्स को ईजिली वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है. द थर्ड वन इज इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल पार. जनरली कॉमर्शियल पेपर भी एक तरह का जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरह बिहेव करता है. सो इट इज़ अ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल पार.
It is an alternative to bank borrowing. The original purpose of commercial paper to what was to meet working capital needs of the company. जनरली जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक से लोन न लेके, बैंक से बोरो न करके, बल्कि वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं और बेसिकली कॉमर्शियल पेपर के थ्रू कंपनीज अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है. द फिफ्थ वन इज़ it is used by company for bridge financing, a method of financing used by company before issuing share or debenture to cover the expense associated with the issue of such security, that is a flotation cost, that is brokerage, commission, printing out application and advertising. You know, when a company issue a share or debenture, so it face a lots of unnecessary expenditure on issue of securities like a flotation cost. यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई कंपनीज अपने शेयर या डिबेंचर को इशू करती है मार्केट में फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करना पड़ता है. जैसे ब्रोकरेज देना पड़ा, कमीशन पे करना पड़ा, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशंस को के लिए खर्च हुआ, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च हुआ. सो कंपनी इन सारे खर्चों को पे करने के लिए बेसिकली कॉमर्शियल पेपर का यूज़ करती है. यानी विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल पेपर कंपनी यूज्ड it for bridge financing. Bridge financing means it is a situation where company issued commercial paper to meet the flotation cost on issue of security of companies. So company में जो bridge financing का जो टर्म है वो आप एकदम क्लियर कर लीजिए. bridge financing एक टेक्निक्स है जिसमें कंपनी क्या करती है, अपनी शेयर एंड डिबेंचर को इशू करते वक्त जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उस फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को राइट ऑफ करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो कॉमर्शियल पेपर को इशू करती है. और जनरली यू नो वेरी वेल कि कॉमर्शियल पेपर एक रेपुटेड कंपनीज के थ्रू इशू किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज़ अ कॉल मनी. सो इट इज़ also a very important instrument for the money market. Call money is a method used by commercial bank to borrow fund from each other in order to maintain the cash reserve ratio. Generally you know very well कि every banks को एक RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है. सो जब कंपनी के पास मनी की डिमांड ज़्यादा आती है, यानी कि उसके डिपॉजिटर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने लगते हैं, सो द बैंक्स के सामने एक चैलेंज होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स की डिमांड को फुलफ़िल करें. एज़ वेल एज़ RBI की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रेशियो भी उसे मेंटेन करना पड़ेगा. सो सिचुएशन में कंपनी कॉल मनी का यूज़ करती है. कॉल मनी की हेल्प से कंपनी क्या करती है, अदर बैंक से अदर नेशनलाइज्ड बैंक कह सकते हैं या शेड्यूल्ड बैंक्स कह सकते हैं, उन बैंक्स की हेल्प से मनी रेज करती है विद द हेल्प ऑफ कॉल मनी. सो you know very well cash reserve ratio is a minimum balance of cash to be maintained by bank according to RBI guideline. यानी बेसिकली अगर बैंक्स के पास ज़्यादा डिमांड आ जाए मनी की, यानी उसके जो डिपॉजिटर हैं वो अपना पैसा बैंक से लेने लगेंगे वापस, तो बैंक के पास कैश की समस्या आ जाएगी, यानी उसका जो कैश रिजर्व रेशियो है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा. सो सिचुएशन में बैंक्स क्या करते हैं, अदर बैंक्स की हेल्प से अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन रखते हैं. So what is the feature of the call money? The first one is it is a short term finance repayable on demand. Second, maturity of call money is 1 day to 15 days. यानी call money का जो maturity होता है वो देखिए कितना short term period होता है, 1 दिन से लेके 15 दिन तक. The interest paid on call money is called the call rate. यानी जब किसी एक बैंक को अपना CRR मेंटेन करने के लिए दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए वो उसको भी कुछ चार्जेस पे करती है. उस चार्जेस को हम लोग कॉल रेट कहते हैं. द कॉल रेट इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग विच वेराइज फ्रॉम डे टू डे और इवन फ्रॉम आवर टू आवर. जनरली जो कॉल रेट होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है. ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बैंक के पास कितनी डिमांड है कॉल मनी की और उसकी कितनी सप्लाई है कॉल मनी की. जैसे सपोज़ पंजाब नेशनल बैंक के डिपॉजिटर हाईली डिमांड कर रहे हैं अपने डिपॉजिट्स की, तो सिचुएशन में पंजाब नेशनल बैंक facing a difficulty to maintain the CRR. So in this situation it will contact to their near banks to maintain the CRR. For example, it is a Union Bank of India. तो PNB बैंक ने Union Bank of India से contact किया कि please provide me a sufficient fund to maintain the cash reserve ratio. तो Union Bank अपने
डिपॉजिट्स अपने कैश को एनालाइज करके उसके डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करके कॉल रेट डिसाइड करता है। ये कॉल रेट जो होता है डे वाइज डिसाइड भी हो सकता है और घंटे घंटे पे भी डिसाइड होता है। डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर मार्केट में डिपॉजिटर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे तो सिचुएशन में कॉल रेट ज़्यादा होगी, क्योंकि सबके सामने लगभग यही समस्या आएगी कि उनके पास एडिक्वेट कैश अवेलेबल नहीं हो। वहीं अगर मार्केट में डिपॉजिटर की जो डिमांड है कैश की वो कम रहती है तो सिचुएशन में कॉल रेट जनरली मार्केट में लो चलता रहता है। इट इज़ देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉल रेट्स एंड रिटर्न ऑन other short-term money market instrument. Increase in call rates make demand for call money decreases and increases the demand for the other short-term instrument as they become cheaper in relation to call money. ये अगर हम बात करें कॉल रेट्स की और अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट जैसे कॉमर्शियल पेपर हो, ट्रेजरी बिल हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, सो इन तरह के इंस्ट्रूमेंट पे मिलने वाले रिटर्न और कॉल मनी पे चार्ज किया जाने वाले कॉल रेट दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी अदर सिक्योरिटीज़ ओके, जैसे अदर सिक्योरिटी मान लीजिए कॉमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, अगर इस पे रिटर्न मार्केट में ज़्यादा चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है कॉल रेट जो होंगी वो कम होंगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जब रिटर्न इस पर ज़्यादा चलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि पैसे को कॉल मनी के रूप में प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली इफ़ यू फाइंड दैट द रिलेशन बिटवीन द कॉल रेट्स एंड रिटर्न ऑन अदर काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, so we can find that there is an inverse relationship between the call rates charged on the call money and the rate of return on the other kind of short term money market instrument. So now the fourth instrument of the money market is certificate of deposits. Certificate of deposit are issued by commercial bank or development financial institution to individual institution, corporation and companies. यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो कंपनी कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक से इशू करती है और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। किसको इशू कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स को इशू कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को इशू कर सकते हैं, किसी कॉर्पोरेशंस को और किसी कंपनीज को। और इसका सबसे पहला पार्ट होता है इट इज़ एन अनसिक्योर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। ये इस सर्टिफिकेट डिपॉजिट पे जब कंपनी इशू करती है फॉर्म शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए फ़ंड के लिए, तो ये इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रखती है, एक तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है एंड इट इज़ एन बियरर फॉर्म। बियरर फॉर्म का मतलब होता है हु इज़ द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हु विल रिसीव द इंटरेस्ट, हु विल रिसीव द रेट ऑफ रिटर्न। ये बात याद रखिएगा। बियरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट डिपॉजिट के डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी को उस सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स में मिलने वाला रिटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। द नेक्स्ट फीचर ऑफ certificate issued in periods of tight liquidity when the deposit by individual household is less but the demand for credit is high. This is help to mobilize large amount of money in the short term period. देखिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जनरली जब बैंक्स के पास काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के डिपॉजिट होती हैं, सो ऑन द बेस ऑफ दिस डिपॉजिट कंपनीज डिपॉजिट को एज अ मॉर्गेज रख के उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मार्केट से लोन उठाती है शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए। और ये जनरली तब काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है जब कंपनी के या मार्केट में जो लिक्विड का रेट होता है बहुत ही टाइट होता है। लिक्विड मीन्स मार्केट में मनी सप्लाई काफ़ी कम हो जाती है लेकिन मनी की डिमांड काफ़ी हाई रहती है। यानी इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड की बात करें, जो सेवर्स हैं जिनके पास सेविंग्स होती है, जो कि बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और बिज़नेस फर्म्स की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, सो अगर उनके पास लिक्विड की कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है हमारा जो क्रेडिट रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में तो मनी की डिमांड हमेशा रहती है। सो इन दिस सिचुएशन जनरली कॉमर्शियल बैंक इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स कंपनी क्या करती है? इंडिविजुअल को इशू कर सकती है, इंस्टीट्यूशन को यूज़ कर सकती है, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज को इशू कर सकती है। एंड एज वेल एज सर्टिफिकेट डिपॉजिट की हेल्प से एवरी बैंक्स अरेंज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा वो अरेंज कर सकती है इन शॉर्ट टर्म पीरियड। यानी इसमें कंपनी क्या करती है, जो डिपॉजिट्स होती है उस डिपॉजिट को मॉर्गेज रख के
मार्केट से लोन, मार्केट से मनी रेज करती है। सो इन दिस सिचुएशन यू नो कि मार्केट में अगर शेयर्स के पास पैसा नहीं है तो जो बैंक्स हैं वो मार्केट से पैसा कैसे अरेंज कर सकते हैं, डिपॉजिट को मॉर्गेज रख के। द नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉमर्शियल बिल। इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशूड बाय बिजनेस फर्म टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। यानी जनरली कॉमर्शियल बिल कौन इशू करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया था बिजनेस फर्म टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। जनरली कॉमर्शियल बिल वही बिल है जो आप क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस किया है। यू नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज in class 11th, drawer and drawee. So it is a best example of raising a short term period of finance. So generally business firm issue a commercial bill to meet their working capital needs. Suppose अगर किसी business firm को lots of inventories की ज़रूरत है for the production purpose और it has a no money और ये एक्सपेक्ट करती है वो कंपनी की, वो फर्म की, जब हम इससे प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा हम उससे अपनी रॉ मटेरियल्स की प्राइस को पे ऑफ कर सकते हैं। सो सिचुएशन में फर्म क्या करती है, मार्केट से इन्वेंट्रीज़ को क्रेडिट पे परचेस कर लेती है, रॉ मटेरियल्स को क्रेडिट पे परचेस कर लेती है और प्रोडक्शन करती है और गुड्स सेल करती है। और 2, 3, 4, 5 महीने में जब उसका गुड्स सोल्ड हो जाता है, जब उसको कैश में पैसा मिल जाता है तो प्रॉफिट अपने पास रख के बाकी पैसा जो होती है, जो कॉमर्शियल बिल के थ्रू उसने एज अ लोन लिया था फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो उस पैसे को रिटर्न कर देती है। सो बेसिकली कॉमर्शियल बिल इज़ जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर इशूड बाय द बिजनेस फर्म टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। द फर्स्ट फीचर ऑफ द कॉमर्शियल बिल, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म सेल्फ लिक्विडेटिंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइनेंसिंग क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म। यानी क्रेडिट परचेस कह लो या क्रेडिट सेल कह लो, दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर कोई कंपनी क्रेडिट सेल करती है तो उसे कॉमर्शियल बिल मिलता है, और अगर कोई कंपनी क्रेडिट परचेस करती है तो वो बिल्स पेबल यानी कि कॉमर्शियल बिल इशू करती है, एक्सेप्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज नंबर 2, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बायर हु एक्सेप्ट इट। यानी यू नो वेरी वेल, अगर कोई कंपनी या कोई फर्म गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट पे तो जो सेलर होता है, इट मीन्स अ ड्रॉवर, वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ अप करता है बायर पे, जिसे हम लोग ड्रॉई बोलते हैं, जो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। When he accept a bill, it becomes a marketable instrument which is called a trade bill. When the seller present it into bank for discounting it to get funds before the maturity of the bill and the bank accept it, it is called commercial bill. I hope it is very clear. मैंने आपको शुरू में दिया था कॉमर्शियल बिल इज़ जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि जब भी कोई क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट परचेज होती है, तो परचेजर क्या करता है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करता है और सेलर जो होता है वो बिल्स रिसेबल ड्रॉन करता है। और जब सेलर के पास बिल्स रिसेबल आ जाता है तो उस बिल्स रिसेबल को वो चाहे तो मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही बैंक्स में जाकर डिस्काउंट करा सकता है और फंड ले सकता है, और जैसे ही वो बिल बैंक में जाकर डिस्काउंट हो जाता है, सो इट बिकम्स अ कॉमर्शियल बिल। सो विद द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल बिल, सेलर ऑफ द कंपनी take the funds from the bank before the maturity. So now they are basically 5 important instrument of money market, and generally these kind of instrument of the money market helps to raise a short term funds for the RBI, for the government of India, for the commercial bank, for the large credit worthy companies. So before concluding the instrument of money market, let's we revise each and every instrument in short. The first instrument of money market is treasury bill. You know very well, the treasury bill is also known as the T-bill, issued by the government of India. Firstly, it is issued by the government of India to the Reserve Bank of India, and thereafter Reserve Bank of India issued in the market to raising a short term fund on behalf of government of India. Treasury bill is just like a zero coupon bonds because it is issued at discount and redeemable at par. Its maturity period is less than one year, and it is in the form of promissory notes and have a highly liquid and zero risk, and
hold a zero risk. It is available in the denomination of 25,000 and its multiples. The second one is the commercial paper. Commercial paper issued by the large creditworthy company to the short-term funds to raise the short-term funds at lower rates of interest than the market rate. Its maturity period from 15 days to 1 year. It is also issued at a discount and redeemable par. Generally, commercial paper issued by the company to meet a working capital needs of the firm, as well as commercial paper helps to use as a bridge financing, where company issued a commercial paper for meeting a flotation cost on the issue of the securities of the company. The third one is a call money. Generally, call money is a method used by the commercial banks to borrow fund from each other. Means one bank arranged a short-term fund from the another bank. So in this situation, needy banks issue a call money to maintain a cash reserve ratio, because cash reserve ratio is a minimum balance of cash to be maintained by bank according to the RBI guideline. Generally, call money are arranged from first 1 day to 15 days, and the interest paid on the call money is called call rate. Call rate is very highly fluctuating because it varies from day to day and even hour to hour. The important part of the call money is there's an inverse relationship between the call rates and return on other short-term money market instruments. The next one is the certificate deposit. As I say, the certificate deposit issued by the commercial bank or the development financial institution to individual, institution, and corporation and companies. Generally, it is issued by the bank in the period of tight liquidity, when the deposit by individual and household is less, यानी individual और household की deposit काफ़ी कम रहती है, but the demand for credit is high. With the help of certificate deposit, commercial banks mobilize large amount of money in short term period, and at last the commercial bill is a bills of exchange used by business firms to meet their working capital needs. Commercial banks is a just kind of bills of exchange which are drawn by the drawer on the goods sold on credit, and drawee accept the bill, and after that drawer discounts such kind of bill from the bank. Thereafter the bills of exchange becomes a commercial bill, because with the help of bills of exchange, companies arrange the short-term funds on the basis of bills of exchange from the banks before the maturity period. So here it is a 5 important money market instrument, that is a treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposits, and commercial bill. So now we will move to the second type of market, that is a capital market. You know very well, the capital market is a market for medium and long term funds. This market facilitates the institutional arrangement through which long term fund, both debt and equity, are raised and invested. The capital market consists of development banks, commercial banks, and stock exchange. An ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existing of well functioning capital market. यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ से कंपनीज, कॉमर्शियल बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट है, वो जनरली कंपनीज ही होती हैं. यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कैपिटल मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फ़ंड रेज कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फ़ंड अरेंज कर सकती हैं. कैपिटल मार्केट जो होता है वो दो तरह के सोर्स में या दो तरह के इंस्ट्रूमेंट में डील करता है. द फर्स्ट वन इज़ अ इक्विटी एंड सेकंड इज़ अ डेब्ट. यू नो वेरी वेल कि जब कोई कंपनीज़ बड़े या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फ़ंड अरेंज करती है तो जनरली वो या तो मार्केट में शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है. तो शेयर इज़ अ इक्विटी source of the finance, whereas the debt is a borrowed source of the finance. So they are basically in the capital market, they are basically two instruments used
by the company to arrange a long-term fund, that is a equity, and second is a debt. As well as capital market is a ideal capital market where finance is available at reasonable cost. अगर हम आइडियल कैपिटल मार्केट की बात करें तो आइडियल कैपिटल मार्केट एक ऐसा कैपिटल मार्केट होता है जहाँ पर फाइनेंस अवेलेबल हो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ऑप्टिमम वे में अवेलेबल हो, इट मीन्स जहाँ पे डेप्ट भी फंड अवेलेबल हो एज वेल एज बोरोड इक्विटी फंड भी अवेलेबल हो एट अ रीजनेबल कॉस्ट. रीजनेबल कॉस्ट मीन्स कि जो डेप्ट फंड हम अवेलेबल करें, जो अरेंज करें, उसका एक रीजनेबल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़े कंपनीज़ को, एज वेल एज जो इक्विटी फंड या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू अगर हम फंड अरेज कर रहे हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करें, जनरली द इंटरेस्ट पेड ऑन द डेप्ट फंड एंड डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी फंड, it has a reasonable cost.